Okay, very well. I see most of you have joined again. So, guys, I left you with a question. What could be done better? Let's see what could be done better. Think about it. When I built a model with sales against TV budget, that model did not have information about newspaper and did not have information about FM budget. Yes or no? That was model number one. When I did model with newspaper budget, that model did not have information about TV and FM budgets. Again, yes or no? Correct? Am I right? Same goes for the model number three. Essentially, what I mean to say is that there is no one model which has this entire information. I had this entire information available. I'm not providing it to my model. Could there be a way that I can provide this entire information to one model and that model will choose these variables according to their weightage? That would be wonderful, no? So now that's where we are stepping into multiple linear regression. We started off with regression analysis. We tried to establish a relation y is equal to function of x. We could not figure out what could be this generalized function. So we settled with a straight line. So thus it becomes linear regression analysis. Now within linear regression, we tried single linear regression. Target variable is always one, but we are doing one predictor at a time. Let's go into multiple linear regression. We will try to do multiple predictors all together. Let's do this. Let's do this. So x-axis पे TV budget. Very good. Y-axis is target variable. So target variable is sales here. Yes, X, Y. Now I have newspaper budget. Where do I go? Maybe I can go to Z-axis. Consider it going inside the screen. Inside the screen towards the wall beyond. That is Z-axis. So okay, Z-axis is equal to newspaper budget. Now comes another problem. What is another problem? एक्स एक्सिस पे टीवी बजट हो गया, जी एक्सिस पे न्यूज़पेपर हो गया, वाई एक्सिस पे तो टारगेट रहता है, एफएम को कहाँ ले जाऊं? Getting the idea? Geometry is limited to three-dimensional space. You have covered all the three dimensions. And now predictor, अभी तो चलो तीन थे, ये तो 30 भी हो सकते हैं. अरे जैसे तुम्हारे कार्स वाले डेटा सेट में हैं, how many predictors are there? There may be 10, there may be 50. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? Geometry is limited to 3D space
and you don't, your variables are maybe much more than that. तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम क्या है, व्हेन यू आर डूइंग मल्टीपल रिग्रेशन, मल्टीपल प्रेडिक्टर्स आर देयर, तो यू कैन नॉट विजुअलाइज दैट. देख रहे हो ना, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, सोच भी नहीं पा रहे हो कैसे रखोगे उसको, कहाँ जाएगी फोर्थ एक्सेस. सो बियॉन्ड 3D स्पेस यू कैन नॉट इवन इमेजिन. प्लॉट करना तो दूर की बात है, तो देख नहीं पाओगे. somebody said it, अजिंक्य was asking कि लाइन प्लॉट कर सकते हैं क्या, नहीं देख पाओगे. ठीक है, देख नहीं पाओगे तो करोगे क्या, फिर करेंगे क्या. सर फंडा फेल नहीं, फंडा फेल नहीं हुआ है, फंडा अभी भी है. बिकॉज इस ज्योमेट्री की ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अभी भी हो सकती है. कैसे हो सकती है, बीटा नॉट, हाँ जी, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हम इसको, बीटा नॉट प्लस बीटा 1 इंटू एक्स. नाउ यू हैव मल्टीपल predictors, so we are saying beta naught plus beta 1 x1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 and so on. अब ले आओ ना कितने भी प्रेडिक्टर. अरे अब कितने भी प्रेडिक्टर हो इक्वेशन में तो रख सकता हूँ, ज्योमेट्री में नहीं रख पाऊंगा, विजुअलाइज नहीं कर पाऊंगा, बट एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन तो अभी भी डेवलप कर सकता हूँ. ठीक है जी. अमित चलो ये तो बजट है, इसमें तो बजट में तुम टोटल बजट निकाल लोगे, लेकिन थिंक अबाउट योर कास्ट डेटा सेट. वहां पर एक कॉलम है तुम्हारा इंजन साइज, दूसरा कॉलम है हॉर्स पावर, तीसरा कॉलम है नंबर ऑफ गियर्स. वहां भी टोटल बनाओगे क्या, उन तीनों कॉलम का मतलब कुछ और ही है, हम कुछ और देख रहे हैं. मैं चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअली टीवी बजट कितना इम्पैक्ट करता है. हमने देखा ना अभी थोड़ी देर पहले तो देखा कि टीवी बजट का इम्पैक्ट काफी ज्यादा आता है सेल्स पे. न्यूज़पेपर बजट का कोई खास इम्पैक्ट नहीं है सेल्स पे. तो सबका अपना अपना इन्फ्लुएंस है, तो अलग अलग ही दिखना चाहिए ना मेरे को वो. ये समझ आ रहा है या क्वेश्चन है इसमें कुछ. अरे इसे तुम वही समझो, बीटा 1 मैंने शायद गलत ही लिख दिया, एम एक्स प्लस सी लिख रहा था मैं अब तक. अब मेरे पास बहुत सारे एक्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हैं, तो मैं कह रहा हूँ m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3. ले आओ कितने भी, अब कितने भी क्या फर्क पड़ता है, और लास्ट में इंटरसेप्ट. So I have converted the same equation as an expression of multiple predictor variables. Number of axes, वहीं से तो प्रॉब्लम शुरू हुआ था जयंत. What will happen is now your model, now your machine will work actually. Your machine will work in imaginary and dimensional space behind the screen. जो देख नहीं पाओगे तुम, यू कैन नॉट विजुअलाइज इट. आपका मशीन उसे दिखा नहीं सकता किसी तरह से, आप उसे देख नहीं सकते किसी तरह से, बट इट विल एक्सप्रेस द इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ दिस एल्जेब्रिक इक्वेशन. उससे पता चलेगा मेरे को कि इक्वेशन क्या बनी, उससे मेरा प्रेडिक्शन आएगा, ज्योमेट्री नहीं दिखेगा. अभी समझा. यस यू कैन टेक एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स नाउ. तो आइडिया, द कैलकुलेशन जो चलेगी, जो आइडिया बिहाइंड दिस रिग्रेशन एनालिसिस इज दैट इज ज्योमेट्री. हाउएवर व्हेन इट कम्स टू एन डायमेंशनल ज्योमेट्री काम वही हो रहा है, दिखेगा नहीं. चलो गुड टू सी एटलीस्ट यू आर क्वेश्चनिंग. आई एम वेरी मच श्योर दैट अभी सबको समझा नहीं है, लेकिन बोल नहीं रहे हो.
Anyway, if you are not asking, I will assume that you are getting it all. चलो करके देखें हैंड्स ऑन. लेट्स गो अहेड. लेट्स देखिए ये हैंड्स ऑन आर में कैसे होगा. तो आर में मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा? Like this one. Don't type it. I'm just dropping it in the chat box. Just understand first. So let's go to multiple linear regression. Now I'm using multiple predictors. और कैसे बोल रहा हूँ? I'm creating a model all. I'm calling it model all. और क्या होता है मॉडल ऑल? LM वही फंक्शन, सेल्स मेरा टारगेट, टिल्डा यानी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? नाउ आई एम मेंशनिंग टीवी प्लस न्यूज़पेपर प्लस FM बजट, तीनों को एक साथ ले लो. नाउ अगेन अमित जो कह रहा था ये वो नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि टीवी ऐड हो गया न्यूज़पेपर बजट में और ये ऐड हो गया FM बजट में. इट डजंट मीन दैट. इट मीन्स आई एम एडिंग इंफॉर्मेशन कि मेरे को तीनों की इंफॉर्मेशन एक साथ चाहिए. डेटा इज DS. ठीक है. So this is one way to do that. Here in the chat box. हाँ जी, अगला क्वेश्चन वही आ रहा था. अगर मेरे पास 50 वेरिएबल हों या 100 वेरिएबल हों या 500 वेरिएबल हों तो यही लिखूंगा क्या मैं आज शाम तक? टीवी प्लस न्यूज़पेपर प्लस FM प्लस वॉल पेंटिंग प्लस होर्डिंग प्लस जसोला वाली बिल्डिंग? आई डोंट थिंक सो. So there is another expression. It is dot. मेरा काम क्या था? मेरे को डिफाइन करना है. देखो ना मेरा काम कितना आसान हो गया. मुझे बस ये बताना है कि मेरा टारगेट वेरिएबल तो ये है और टारगेट वेरिएबल छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे प्रेडिक्टर ही हैं. तो वो बताने का तरीका क्या है? वो बताने का तरीका यही है. मैंने क्या बोला? LM लीनियर मॉडल बना दो. सेल्स ये तो मेरा टारगेट है तो इसे तो रख लो यहाँ पे. सेल्स विद रेस्पेक्ट टू. नो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? डॉट मीन्स सेल्स को छोड़ के बाकी सारे जितने भी हैं सब उठा लो. ठीक है जी. तो अब आपके वेरिएबल 50 थे तो सेल्स को छोड़ के बाकी 49 आ गए. 100 थे तो सेल्स को छोड़ के बाकी 99 आ गए. सिंपल. तो भविष्य में आप यही करेंगे, आप ये प्लस प्लस नहीं करेंगे. Here in the chat box. हाँ आते हैं, उसको भी आते हैं. अरे आते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो? विश्वास रखो मेरे पे. जब डेटा साइंटिस्ट बनाऊंगा तो मैं अच्छा वाला ही बनाऊंगा. आधे में नहीं छोड़ेंगे. दिस टाइम वी यूज द वाइल्ड कार्ड डॉट और उससे हमने समरी चेक किया तो हम क्या देख रहे हैं? हाँ जी. इस बार आपने समरी चेक किया तो क्या देखते हो? कॉल. अरे यार ये कॉल क्यों बताता है? रेसिडुअल देख रहे हो? चलो रेसिडुअल से थोड़ा सा आइडिया मिल गया.
रिमेंबर इस बार प्लॉट नहीं देखा हमने, क्योंकि वो तो पहले ही सोच लिया था हमने, देख ही नहीं पाओगे, 4 एक्सेस है ही नहीं मेरे पास विजुअलाइज करने के लिए। लेकिन मैंने कहा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। देखना मिल गया क्या? अरे देखना मिल गया क्या? ये देखो, ये देखो, ये सारे कॉफिशिएंट जो मिले हैं ना, ये वही हैं। मैंने क्या बोला था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा? सेल्स इज इक्वल टू एज अ फंक्शन ऑफ ऑल द अदर वेरिएबल्स। तो क्या कह रहा है ये? आपके टीवी बजट का कॉफिशिएंट वो तो इतना है, तो M1 इंटू टीवी बजट प्लस M2, M2 कितना है? इतना है। अच्छा, माइनस साइन भी है। ओके, माइनस साइन है तो ये प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस M2 इंटू X2। X2 कितना है? कौन सा था इस बार? न्यूज़पेपर बजट, बढ़ गया, प्लस M3 दैट इज ओके, तीसरे का कोएफिशिएंट मिल गया। देख रहे हो, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सारे मिलते जा रहे हैं। इंटू FM बजट, ये भी काम हुआ। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टीवी, न्यूज़पेपर, FM, सारे ही बजट आपने एक ही बार में इंक्लूड कर लिए हैं। तो इससे क्या हुआ आपका मॉडल, और फाइनली इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट इज दिस। अच्छा, ये गलत हो गया। हाँ जी, आते हैं उस पर भी। फिलहाल यहाँ तक बात कैप्चर हो गई, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। तो इक्वेशन यू गॉट सेल्स एज अ फंक्शन ऑफ टीवी, न्यूज़पेपर एंड FM बजट ऑल टुगेदर। तो सेल्स कैलकुलेट हो जाएगी जी। नाउ कम्स द बेटर पार्ट। एडजस्टेड आर स्क्वायर देख रहे हो उसकी कितनी है इस वाले मॉडल की? अब जो बनाया है, इट इज यस 89.56%. So it is almost achieving 90% R squared. What does that mean? It means your line, जो भी लाइन बनी होगी है इमेजिनरी ज्योमेट्री में, दिख तो नहीं रही लेकिन बनी बहुत अच्छी है। फिट बहुत अच्छा हुआ है। So you see, when I developed a single model with all the possible variables, जब उसको मैंने सारी information दे दी, तो then it is doing fantastic. It is fitting very nicely. क्योंकि अब उसके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तीनों वेरिएबल्स की इन्फॉर्मेशन एक साथ है। सेल्स कितनी होगी वो भी बता रहा है।
यहाँ तक सही है? अरे बॉस की चिंता बाद में करेंगे, पहले अपनी तो कर लें। यहाँ तक ठीक ठाक, एवरीबडी गेटिंग इट? सो व्हेन देयर इज वन पावरफुल मॉडल, जब पहले मैंने देखा सिंगल सिंगल बना करके, आई एंडेड अप विथ 3 वीक मॉडल्स। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन टू वन मॉडल एंड इट टर्न्स आउट टू बी अ वेरी स्ट्रांग मॉडल। ठीक है जी, तो फिट हमारी बहुत अच्छी हो गई है, यानी ये मॉडल बहुत कम एरर कर रहा होगा, बहुत कम इसने रेजिड्यू छोड़ा होगा फिटेड पॉइंट से, बहुत अच्छे से फिट हुआ है। नाउ कम्स अनदर थिंग विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रिडिक्शन। हाँ जी, इक्वेशन मिल गई, बता दोगे ना भविष्य में क्या होगा अगले महीने? वो तो बॉस बताएंगे कि टीवी बजट कितना रखना है इस महीने, न्यूज़पेपर बजट कितना रखना है, एफएम बजट कितना रखना है। तुम धड़ाक से रखो इक्वेशन में, बता दो सेल्स कितनी आएगी। तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा मॉडल फिट बहुत अच्छा हुआ था, तुम्हारी जो लाइन फिट हुई थी, रेसिड्यू उसने बहुत कम छोड़ा है, तो एरर जो करेगा वो थोड़ा बहुत ही करेगा, तो तुम्हारा प्रिडिक्शन मोर और लेस अच्छा ही जाने वाला है। तो एक्यूरेसी तो आएगी। एक्यूरेसी ये मत बोल देना बॉस के सामने कि 90% आएगी, अच्छी आएगी, दैट इज अनदर थिंग। मॉडल फिट अच्छा है। नाउ देयर इज समथिंग एल्स विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। देखो, जब भी प्रेडिक्टिव मॉडलिंग के आपके सामने प्रॉब्लम आएगा, उसके दो पार्ट होंगे। वन पार्ट इज ऑब्वियसली दिस, योर प्रेडिक्शन शुड बी एज एक्यूरेट एज पॉसिबल। तो वो तो एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड देख के मुझे समझ आ रहा है कि प्रिडिक्शन मेरा ठीक ठाक ही जाने वाला है। हाँ जी, व्हाट कुड बी द अनदर व्हाट कुड बी अनदर प्रॉब्लम? किसी ने पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, किसका क्वेश्चन था? I don't- हाँ ये है। गाइस इसीलिए कहता हूँ प्राइवेट चैट मत डाला करो मेरे को, लेट्स लेट अदर्स आल्सो सी। दूसरा पार्ट क्या इंपॉर्टेंट है, थिंक अबाउट इट। तुम्हारा प्रेडिक्शन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन बता रहे हो तुम, तुम्हें पता है एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड बहुत अच्छी है, तो एरर बहुत कम कर रही है लाइन तुम्हारी, तुम जो बोलोगे वो ठीक ठाक सही जाने वाला है, हार्डली थोड़ी बहुत एरर करेगा, थोड़ा बहुत डेविएट हो सकता है, तो प्रेडिक्शन तुम्हारा एक्यूरेट। तो तुम इस फार्मूला से सेल्स कैलकुलेट कर रहे हो अगले महीने, बॉस ने बताया हम बजट इतना रखेंगे, ये इतना रखेंगे, ये इतना रखेंगे, सेल्स बताओ। तुम कह रहे हो बॉस सेल्स जाएगी नीचे, उससे मतलब अगले महीने और नीचे जाएगी, और उससे अगले महीने और नीचे जाएगी, और उससे अगले महीने खत्म हो जाएगी। तो प्रिडिक्शन बहुत एक्यूरेट है मेरा। हाँ, आर आती है मेरे को, रिग्रेशन एनालिसिस आता है मेरे को, तो प्रिडिक्शन तो बहुत अच्छा बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ। लेकिन बता क्या रहे हो? बता रहे हो ये बॉस को, तो क्या कहने वाला है बॉस? क्या कहने वाले हैं बॉस, या क्या कहने वाले हैं क्लाइंट? हाँ उठाओ झोला, निकल बाहर। नहीं नहीं, इतना इतने भी कमीने नहीं है लोग, लेकिन गेटिंग द आइडिया। वो कहेंगे प्रिडिक्शन को रख लो तुम अपने बैग में वापस, मुझे ये बताओ कि करना क्या चाहिए, काम क्या करूं? अगर ये ऐसा होता हुआ दिख रहा है और वाकई इतनी एक्यूरेसी से दिख रहा है, तो ये भी तो बता कि करना क्या है। सही बात है। नाउ, क्योंकि वो एनालिस्ट नहीं है, वो आपसे ये बात किसी भी भाषा में कह सकता है। If your client is a sophisticated person, he or she may use very fancy words. If your client is a very straightforward person, he or she may, upfront
maybe angry at you, or maybe firing you, or maybe not firing you, but yes, maybe having a grilled sandwich kind of thing with you. बट इवेंचुअली व्हाट दे वांट इज, मैथमेटिकली अगर बोलूं तो वो क्या जानना चाह रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो तुमने सारी कहानी बनाई है, विच आर द वेरिएबल्स विच आर इम्पैक्टिंग दिस रिजल्ट, ये तो नो। अगर लॉजिकली बात करूं तो वो ये जानना चाह रहे हैं, समझ रहे हो, कि जो दुनिया भर की तुमने इक्वेशन निकाली है, इसमें से कौन किसको कितना इम्पैक्ट कर रहा है। सो दैट्स वेयर अनदर पार्ट कम्स इन। फर्स्ट पार्ट, माई मॉडल शुड बी एक्यूरेट, सो वो आर स्क्वायर्ड से मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मेरा मॉडल कैसा बना। सेकेंड पार्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज वेरिएबल्स, व्हाट इज देयर इम्पैक्ट ऑन टारगेट वेरिएबल। सो वो दिखता है यहाँ से, ये जो पी आर समथिंग लिखा हुआ है, इट इज कॉल्ड पी वैल्यू, इसको हम बोलते हैं पी वैल्यू ऑफ वेरिएबल। What do they represent? They represent, you can consider it as inverse of significance of these variables. कि ये वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंट है, उसका इनवर्स है। पी वैल्यू जितना कम होगा उतना ज्यादा ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट होगा। Maybe I talked about an ebook on statistics. Did I send or did I mention it somewhere? Something to you? Okay, okay, very well. So, yeah, okay. चलो मैं भूल नहीं जाऊं दोबारा, तो I'm sending it across to you. If you wish, you can, maybe if you are able to read it as ebook, so it is freely available. I'm sending you the book version. It is book, An Introduction to Statistical Learning, very lucidly given statistical concepts. It is by Gareth James. So ebook is in your inbox now. I don't know how many of you are handy with ebooks. I'm not, actually, very honestly. I like the feel of that paperback version. Touching the paper and the smell of that ink on paper, तो उसके बिना हाँ मजा सा नहीं आता, फील्स ही नहीं आती पढ़ने में, मेरे को एटलीस्ट। आई डोंट नो अबाउट यू, बट if you can, if it helps you, so here, I don't mind. Acha, okay, one more thing which I usually forget, please drop a present, everybody, right now. Leave everything else, please drop a present in the chat box. Drop it for once and don't miss it. Please do it just now. वापस आते हैं कहानी पे। ये पी वैल्यू का जिक्र आया तो मुझे याद आया कि ई बुक देना था तुम लोगों को, बुक का रेफरेंस देना था। ये पी वैल्यूज क्या होते हैं डिटेल में बात करूंगा नेक्स्ट टाइम, बट फिलहाल आप इतना समझ लीजिए बिकॉज इतना टाइम नहीं है अभी। पी वैल्यूज क्या होते हैं, दीज रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंस लेवल। पी वैल्यू जितना छोटा होगा उतना वेरिएबल सिग्निफिकेंट होगा एक्सपेक्टेशन में। पी वैल्यू इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी, so it varies between 0 and 1.
जितना 1 के क्लोज होगा उतना वेरिएबल अनइम्पॉर्टेंट है, जितना 0 के क्लोज होगा उतना वेरिएबल ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। माइंड यू, पी वैल्यू का एक्यूरेसी से कोई लेना देना नहीं है। पी वैल्यू डजंट हैव टू डू विद दिस आर स्क्वायर्ड और एक्यूरेसी और एनीथिंग, इट इज जस्ट अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। चलो देखते हैं। यहां नीचे एक छोटा सा लीजेंड दिया हुआ है इसमें कि पी वैल्यू अगर 0.1 यानी 10% से 1 के बीच होती है, 0 से 1 के बीच चल सकती है ना, तो 0.1 और 1 के बीच होगी तो उस वेरिएबल के सामने दिखेगा ब्लैंक। इट इज जस्ट टाइम टू हेल्प यू। पी वैल्यू तो उसने यहाँ पर दिए हुए हैं, लेकिन आपको मैनुअली देखना ना पड़े कि ईच वैल्यू क्या है, तो एक छोटा सा उसने लीजेंड दिया हुआ है। तो 0.1 और 1 के बीच होता है तो ब्लैंक दिखता है यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर। अगर 0.1 और 5 के बीच हुआ, 0.5 के बीच, 0.05 और 1 के बीच हुआ तो डॉट लगा हुआ दिखेगा। ऐसा कोई है नहीं। 0.05% से भी कम हुआ तो वहां पर सिंगल स्टार दिखने लगेगा, यानी इंपॉर्टेंट है। 5% से कम, तो दैट इज अ जनरल कन्वेंशन। तो व्हेन देयर बिगिंस स्टार कमिंग तो उनको हम बोल देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। 1% से भी कम हुआ तो डबल स्टार हो जाएगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट। 0.001 से भी कम हुआ, 0.001 यानी कितना हो गया ये? 0.1%। अगर पी वैल्यू इतनी या इससे भी कम हुई तो आप देखो ट्रिपल स्टार, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मच सिग्निफिकेंट, वेरी मच इम्पैक्टिंग द टारगेट वैल्यू। ठीक है जी। सो दीज आर पी वैल्यू। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं हमारा क्लाइंट क्या पूछ रहा था हमसे कि मेरे को करना क्या है, जो सेल्स नीचे घुसती जा रही है क्या करूं इसका। हमने देखा इंटरसेप्ट, चलो इंटरसेप्ट तो वेरिएबल ही नहीं है, वो तो एस्टिमेट है। हाउएवर दिखा रहा है कि इंपॉर्टेंट है। चलो, टीवी बजट, ये कह रहा है इट इज सिग्निफिकेंट, 3 स्टार्स यानी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। एफएम बजट अगेन 3 स्टार, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। न्यूज़पेपर बजट, न्यूज़पेपर बजट क्या आ रहा है, कितनी है पी वैल्यू इसकी? 0.86, 86%, ऑलमोस्ट 1। मतलब, मतलब इनसिग्निफिकेंट, हाईली हाईली इनसिग्निफिकेंट, कुछ फर्क नहीं पड़ता इससे। इनफैक्ट जस्ट रिकॉल, जब आपने बनाया था न्यूज़पेपर बजट के साथ इंडिविजुअल मॉडल बना रहे थे, सिंगल रिग्रेशन आप कर रहे थे, क्या देखा था स्कैटर प्लॉट में इसके? क्या देखा था? हेवायर स्कैटर प्लॉट तो देखा था कि नहीं? यार तुम बच्चे लोग भूल जाते हो, दिखाना पड़ता है बार बार। ये हुआ था ना, एक्स एक्सिस पे न्यूज़पेपर बजट, वाई एक्सिस पे सेल्स। तुम बजट बढ़ाते जा रहे हो, सेम बजट पे सेल्स कभी यहाँ है कभी यहाँ है, कभी यहाँ है कभी यहाँ है, बजट वही है। देख रहे हो, न्यूज़पेपर बजट उतना ही लग रहा है, यहाँ पे इतना लग रहा था, यहाँ पे इतना लग रहा था। सेल्स इतनी भी हो जा रही है, कभी इतनी हो जा रही है, कभी इतनी हो जा रही है, कभी इतनी। खैर, तुम बने डेटा साइंटिस्ट, कॉमन सेंस से समझ नहीं आया तुम्हें, तुमने बनाया लीनियर मॉडल, आओ बना लो। आर स्क्वायर्ड आ गई 4%। गेटिंग द आइडिया? आपका मशीन तरह तरह से आपको बता रहा है कि न्यूज़पेपर बजट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। आपने विजुअल से देखा, यहाँ से पता चला कि सेल्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। आपने सिंगल मॉडल बना के देखा, यहाँ भी उसने बताया आर स्क्वायर्ड दिखा करके कि ये एक घटिया फिट आया है, कोई फिट एक्चुअली बना नहीं है। आप मल्टीपल रिग्रेशन पे पहुंच गए, आपने चेक किया
यहाँ पर अब वो आपको कैसे दिखा रहा है, अब तीसरे तरीके से दिखा रहा है। अब वो पी वैल्यू दिखा रहा है इसकी, दैट दिस वेरिएबल इज नॉट सिग्निफिकेंट इन प्रिडिक्टिंग सेल्स। क्या बताना चाह रहा है मशीन आपको, कि अपने क्लाइंट से बोलो कि न्यूज़पेपर पे बजट लगाना बंद करे। सेल्स का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये पैसा कहीं ढंग की जगह लगाओ, टीवी बजट पे लगाओ, कि एफएम बजट पे लगाओ, कोई नया मीडियम ढूंढो, कुछ भी करो, लेकिन ये पैसा बर्बाद करना बंद करे। समझ आ रहा है जी? थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सा एक्सटेंड करूं, चलूं 5 मिनट 10 मिनट और आगे, अगर जान हो तो, इंटरेस्ट आ रहा हो तो। अगर निपट लिए हो तो वो बता दो। निपट लिए हैं, कुछ और सोचेंगे। आई होप मजा आ रहा होगा आज। हैंड्स ऑन हो रहा है ना आज। हैंड्स ऑन इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग। ये इतना सारा डेटा कलेक्ट कहाँ से होता है? कलेक्ट कहाँ से होता है? कलेक्ट कहाँ से होता है? हाँ, तुम लोग करवाते हो ना कलेक्ट। जैसे तुम नया फ़ोन परचेज़ करते हो या नया लैपटॉप परचेज़ करते हो, है ना? एंड्रॉयड पे साइन साइन इन करते हो, या क्रोम पे, या मे बी मैक पे, या मे बी हॉटमेल या स्काइप, या जहाँ भी जैसे ही लॉगिन करते हो, वो पॉपअप आता है ना, वो पॉपअप आता है ना, बड़े प्यार से वो पूछता है, एक्सेस दे दो ना, और तुम दे देते हो कि हाँ चल हटा, ये ले, जा, रईस आदमी हूँ मैं। ऐसे होता है वो डेटा कलेक्ट। कभी करके देखना, कभी मैप्स लगा के तुम कहीं जाओगे, सपोज यू आर गोइंग टू मार्केट, यू नो गूगल के, गूगल भी एंड इनफैक्ट एप्पल भी बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट हो गया। एप्पल का तो आई डोंट हैव अ टेस्ट, बट गूगल आई कैन वेरी श्योरली से, if your location is on and you are moving around somewhere, say it happens with me a lot. Initially it happened, now उन्हें भी पता है कि ये तो जल्ला आदमी है, तो अब बंद कर दिया उन्होंने। पहले पूछते थे। Those who are from Delhi, they will know that Emarticus office is right next to PVR, Connaught Place, CP. तो मैं यूजुअली जी मैप्स लगा करके ऑफिस पहुंचता था, तो लोकेशन ऑन रहती थी, एंड विद इन 5 मिनट्स आई विल गेट अ पिंग, हाउ योर एक्सपीरियंस ऑफ PVR CP। तो ऐसे हो रहा है डेटा कलेक्ट। चलो वापस आते हैं, काम की बात करते हैं थोड़ी सी और। तो अच्छा, चलो ये बात तो क्लियर हो गई, हमने कई तरह से देख लिया, हालांकि इतने तरह से देखने की जरूरत नहीं थी। कहानी कहाँ तक आ गई? हम सिंगल लीनियर रिग्रेशन से चालू हुए, अब हमें समझ आया कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन करना होता है, और वेरिएबल सिग्निफिकेंस मेरे को एक एक करके अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे पी वैल्यू भी देख सकता हूँ। पी वैल्यू देखा और मेरे को पता चला कि न्यूज़पेपर बजट इज नॉट सिग्निफिकेंट, टीवी बजट एंड एफएम बजट आर हाईली सिग्निफिकेंट। माई एक्सपीरियंस एट होम। क्या कहना चाह रहा है तू? मेरठ का हूँ मैं, मजाक उड़ा रहे हो क्या मेरे? कुछ नहीं है यहाँ, 4-4 किलोमीटर दोनों तरफ तक। चलो ठीक है।
ओके। अरे पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा ही टाइम बचा है। हाँ, ऑन सिंसियर नोट, मैं यहाँ तक हमने वी फिगर्ड आउट कि न्यूज़पेपर बजट काम का नहीं है। तो एक बात बताओ, इसका मतलब अगर ये मेरे मॉडल में ना रहे, अगर ये डेटा मेरे मॉडल में ना रहे न्यूज़पेपर बजट, तो मेरे ख्याल से आर स्क्वायर्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, या पढ़ना चाहिए तो थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। मेरे मॉडल की फिट को कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा मॉडल ही कह रहा है ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है। मेरा मॉडल यही तो कह रहा है कि यार इसका सेल से कुछ लेना देना नहीं होता। एनालिस्ट साहब बता दो अपने क्लाइंट को। हमने कहा ठीक है, अगर सेल से कुछ लेना देना नहीं होता तो हटा देते हैं ना फिर इसको। तो लेट्स ऑप्टिमाइज द मॉडल। हाँ जी, कैसे करते हैं ऑप्टिमाइजेशन? अब मेरे को सारे वेरिएबल्स नहीं बताने, अब मेरे को सिर्फ टीवी और एफएम बजट बनाने हैं। तो मैं कैसे बता रहा हूँ? सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टीवी बजट प्लस एफएम बजट, नॉट न्यूज़पेपर बजट। अब वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ इसमें ऑप्टिमम मॉडल में। क्रिएटिंग अ मॉडल ऑप्टिमम, इट इज ऑप्टिमाइज्ड मॉडल तो इसमें सारे वेरिएबल नहीं है। सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टीवी बजट एंड एफएम बजट ओनली, नॉट न्यूज़पेपर बजट। Here in the chat box. तो देखिए जरा समरी ऑप्टिमम मॉडल की। हाँ अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, ये भी आ सकता है। दो तीन ड्रॉप करने हुए, मतलब सारे ड्रॉप ना करने हुए तो कैसे लिखोगे? यार ये भी बात सही है उसकी। अगर 25 वेरिएबल हैं और उनमें से एक ड्रॉप कर रहे हो तो बाकी 24 लिखोगे क्या? है इच्छा ऐसा करने की? नहीं, उसको आप कैसे लिखोगे? मॉडल ऑप्टिमम मैं क्या कह रहा हूँ, सेल्स टिल्डा डॉट सारे ले लो, माइनस माइनस वॉट, माइनस वही जो नहीं चाहिए। तो ये भी तरीका हो सकता है, बात दोनों से सेम ही है। इंपॉर्टेंट वाले बचेंगे, इनसिग्निफिकेंट जो है वो चला गया। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, ऑल गुड, बोथ आर सेम। इससे भी वही रिजल्ट, उससे भी वही रिजल्ट। हमारा इंटरेस्ट है समरी देखने में, आइए देखते हैं। हाँ जी, क्या देख पा रहे हो आप लोग समरी में? अनचेंज्ड है या कुछ चेंज है? देखो देखो, चेंज तो है। यहाँ पर मल्टीपल आर स्क्वायर कितना था?
8972, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड 8962। ये कब है? जब ऑप्टिमाइज कर चुका हूँ मॉडल को। ऑप्टिमाइज वाले तो ये लिखे हुए, जब सारे के सारे वेरिएबल्स यहाँ पर थे तब कितने थे? 8972, 8956, वो ये रहे, वो ये रहे। दिस ब्रिंग्स मी टू द आंसर, जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था, किसी का क्वेश्चन भी आया था बीच में कि मल्टीपल और एडजस्टेड में क्या फर्क है, एंड व्हाई वी कीप एन आई ऑन एडजस्टेड ओनली। सी, दिस इज एब्सोल्यूट आर स्क्वायर्ड। एब्सोल्यूट आर स्क्वायर्ड जैसे हमने कैलकुलेट करना सीखा था, 1 माइनस एस एस आर डिवाइडेड बाई एस एस टी, तो दिस इज एब्सोल्यूट। द प्रॉब्लम इज, जैसे जैसे आपका डेटा इंक्रीज होता जाएगा, it will always have tendency to increase. In other words, आपका वेरिएबल सिग्निफिकेंट था या नॉन सिग्निफिकेंट था, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ही बताने वाला है। मैं कुछ ऐसा मेजर चाहता था, तो दिस इज समथिंग इंटरनल ऑफ आर, इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ आर, देयर इज अ प्रॉपर फॉर्मूला टू दैट। वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेशन, अगर देखना है तो देख लेना, बिकॉज मैनुअल उसका भी कभी नौबत नहीं आएगा, उसका भी एक फॉर्मूला है, बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड इज समथिंग कि अगर आपके मॉडल में फालतू वेरिएबल्स हैं, समझ रहे हो, अगर आपके मॉडल में फालतू वेरिएबल्स हैं, इट विल बी अ लिटिल बिट पेनलाइज्ड, थोड़ा सा लोअर साइड पे दिखेगा इफ देयर आर अननेसेसरी वेरिएबल्स, एंड इफ यू रिमूव दोज अननेसेसरी वेरिएबल्स, adjusted r squared will reward you with a few points. So that is why this is more sensitive and more more practical measure. यहाँ पर देख रहे हो ना, न्यूज़पेपर बजट, ये फालतू वेरिएबल था तो भी मल्टीपल इतना, ये हटा दिया तो भी मल्टीपल इतना। ऑन द अदर हैंड, एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड, इट इज सेंसिटिव टू दैट। मैक्स ना ना, दैट इज समथिंग एल्स। रुशील, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब क्या है, थिंक अबाउट इट। अगर मैं ये ग्राफ बना रहा था, एक डेटा था ये, और ये लाइन फिट हो रहा था ऐसा, थिंक अबाउट इट, अगर ये डेटा पॉइंट 10-12 हैं, अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे जैसे ये डेटा पॉइंट ज़्यादा ज़्यादा होते जाएंगे, दैट इज़ वन रीज़न, और जैसे जैसे ये एन डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक्सेस बढ़ते जाएंगे, तो जितने ज़्यादा ये एक्सेस होंगे, आर स्क्वायर्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, अगर जो एब्सोल्यूट आर स्क्वायर्ड है, जिसे हम मल्टीपल आर स्क्वायर्ड बोल रहे हैं वहाँ पर, तो ये वेरिएबल्स फालतू हों या काम के हों या काम के नहीं हों, दिस आर स्क्वायर्ड विल बी one absolute value, it will keep a tendency to look elevated। यानी अगर मैंने ये 4 वेरिएबल्स फालतू के भी ऐड कर रखे हैं, ठीक है, तो ये आर स्क्वायर्ड थोड़ा सा एलिवेटेड ही दिखेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वी विल टॉक अबाउट एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड। एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड क्या होता है कि अगर मैं अपने मॉडल में फालतू के वेरिएबल्स रखे हुए हैं, तो इस पे पेनल्टी आएगा, ये मल्टीपल आर स्क्वायर्ड पे पेनल्टी आएगा, और वो पेनल्टी मेरे को यहाँ आर स्क्वायर्ड में दिखाई देगा। तो मैं क्या देखना चाहिए, यहाँ पर अगर देखूं, यहाँ पर इन दिस केस यू सी देयर इज दिस मच डिफरेंस। जैसे ही वो फालतू वेरिएबल गया, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा कम हो गया। यस और नो? मल्टीपल आर स्क्वायर्ड इतना था इस मॉडल में, लेकिन इसमें एक फालतू वेरिएबल था, तो वो पेनल्टी दिखा लगा के एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड कितना दिखाया था उसने मेरे को, इतना। अब वो फालतू वेरिएबल चला गया है, तो एडजस्टेड आर स्क्वायर्ड अचानक थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, वो पेनल्टी हट गई है उसमें। So that is why we take into account adjusted R squared.
ठीक है जी, इस हफ्ते का काम समझ गए? इस हफ्ते काम समझ गए क्या करना है? वो जो कार्स प्राइस वाला डेटा सेट है, खेलो जरा उस पे। उस पे तुम्हें क्रिस्प डीएम के अकॉर्डिंग काम करना आ गया है। ईडीए तक, वेल आई डोंट नो इफ यू हैव डन इट, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू इट बाय नाउ। इफ नॉट डन, डू इट thoroughly. Go till EDA. But now you know, EDA तक काम था एनालिस्ट का. Now you are getting into machine learning. You are throwing your data into a black box and देख तो रहे हो, तुम्हें कैलकुलेशन सिखाने में टाइम लगा है इतना कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है, बाकी किया कुछ नहीं है तुमने, सब मशीन कर रही है अपने आप. Yes or no? Your machine is learning. Your machine is learning from your data and it is telling you the answers. सो कास्ट प्राइस वाले डेटा सेट पे काम करिए एंड बना के देखिए प्रेडिक्टिव मॉडल उस पर कैसा बनता है. अच्छे वेरिएबल्स रखिए, फालतू वेरिएबल्स हटा दीजिए. और देखो आर स्क्वायर्ड पे कैसे कैसे क्या क्या गेम हो सकती है. तो दिस वॉज लीनियर रिग्रेशन फॉर यू पीपल. ठीक है जी. नाउ एज फार एज linear regression, the mathematics of linear regression is considered, this is it. Simple linear regression, SLR, यानी one predictor at a time. MLR, multiple linear regression, multiple predictors at the same time. ये दोनों आप देख चुके हो. Next weekend we are going into, now this is maths, now comes data science. अब खेलेंगे. Now we will play with this maths, how we can elevate, leverage this mathematics to our advantage with some tips and tricks. ठीक है जी. So with that, let's call it for today. So I'm turning off recording. If there is any question, you can state. If there is no further question, then bye bye and take care and have a happy weekend. Rest well, practice well, and return strong. I'll see you next week. Okay, guys. So, very welcome, everybody. Bye, all.